Hello dear students, welcome back to our online classes. Today we are going to discuss very important topic that is marketing process. Marketing process क्या होता है, concentration क्या होता है, dispersion क्या होता है, equalization क्या होता है, सब चीजों को आज जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. First of all, let's have a look on the content. Content में हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे. What is marketing process, types of marketing process and some important questions. चलिए हम जान लेते हैं पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टार्ट विद द फार्म एंड एंड्स विद द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. फार्म से स्टार्ट होता है और कंज्यूमर तक जाता है. इस बीच में बहुत सारे प्रोसेस होती है, बहुत सारे एक्टिविटीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम करते हैं. एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस विल स्टार्ट विद द फार्म एंड एंड विद द कंज्यूमर. So the marketing is not complete unless the commodities are made available in desired form at desired time and place as per needed by the consumer. जब तक हम कंज्यूमर को उसके डिजायर्ड टाइम और डिजायर्ड फॉर्म में जब तक हम उसको नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम मार्केटिंग कंप्लीट नहीं मानते. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द मार्केटिंग of agriculture produce. Now you can see here that the marketing of agricultural produce consists many middlemen, or we can say that it cannot be completed without middlemen. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्म से स्टार्ट हो रहा है, ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स के थ्रू वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है. This involve the middlemen perform the various marketing functions to complete the marketing process. ये बात करते हैं कौन कौन सी मेजर मार्केटिंग प्रोसेस है who completes the agriculture marketing process as whole. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं concentration, dispersion and equalization are major three process which constitute the soul of marketing process, and all the marketing functions are performed by the middleman in the agriculture marketing process. यहाँ पे जितने भी जो concentration, dispersion और equalization की जो functions है या जो processes है उसको complete कौन करता है? Middleman means your traders, agents, exporters, etc. चलिए पहले लेते हैं assembling क्या होता है. Most important process is assembling or concentration. Concentration means the collection of produce at a central place from the various farmers field or various areas. So the process of concentration is called assembling. जो assembling का प्रोसेस है उसी को, जो concentration का जो प्रोसेस है उसी को हम assembling बोलते हैं. concentration क्या है? The collection of produce from various farm. Assembling indicates the collection of surplus amount of individual farmers to make available to the consuming population. असेंबली किसको बोलेंगे? जो छोटे छोटे किसान है या जो लार्ज नंबर ऑफ किसान है उनका जो सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस है उसको कलेक्शन एक जगह और फिर जो कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको हम असेंबलिंग बोलते हैं. जनरली असेंबलिंग का जॉब जो है कौन करता है? होलसेलर, एक्सपोर्टर, एजेंट्स. Assembling is nothing but assembling is the process of collection of surplus amount of agricultural produce from various farmers field to consume or to serve the consuming population of the country. तो यहाँ पे जो असेंबलिंग है उसको यहाँ पे उसके दो फॉर्म देखने को मिलता है. जनरली दो लेयर पे हम उसको असेंबल करते हैं. पहले तो जो विलेज लेवल के जो ट्रेडर्स हैं वो अपने अपने गांव के
जो प्रोड्यूस जो सरप्लस अमाउंट है उसको कलेक्शन कर लेते हैं अपने लेवल पे, और फिर सेकेंडरी लेवल पे असेंबलिंग होता है जहाँ पे सारे आसपास के एरिया के जो सरप्लस अमाउंट है वो सेकेंड असेंबलिंग है वो 70 to 75% मार्केटेबल सरप्लस को जो है अपने यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है, असेंबल कर लेता है, वहां से वो कंज्यूमिंग पॉपुलेशन को या जो बाकी जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स in very simple terms we can say that distribution. So goods and commodities assembled at central place have to be distributed to consumers. जो हमने असेंबलिंग और कंसंट्रेशन के थ्रू जो हमने बल्क में एक जगह पे जो है फार्म कमोडिटीज को इकट्ठा कर लिया है, अब उसको कहीं तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और कहाँ करना पड़ेगा? कंज्यूमर्स को, जहाँ पे जिनको जरूरत है। और गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो प्रोसेस है उसी को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एरियाज टू कंज्यूमिंग एरिया इज नोन एज डिस्पर्शन। जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था छोटे छोटे फ्लोर्स में या छोटे छोटे फील्ड में या लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स की फील्ड में जो है प्रोड्यूस हो रहा था प्रोडक्शन एरिया में, तो वहां से अब जो है जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे कंज्यूमर्स ज्यादा है, जहाँ पे हाउस होल्ड रहते हैं, जो वी कैन से दैट की जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे कंजम्पशन की जरूरत है, वहां पे उसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर डिस्पर्शन नहीं होगा तो जो लोग पैदा नहीं करते, जो लोग प्रोड्यूस नहीं करते वीट और पैडी, वो लोग फिर उसको कैसे कंज्यूम करें, कहाँ से उनको खाने को मिलेगा? तो डिस्पर्शन के थ्रू जो है स्कैटर्ड एरिया में जो है हम जो पैडी है, जो राइस है, जो फार्म कमोडिटीज है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसलिए डिस्पर्शन जरूरी है। क्योंकि सारे कंज्यूमर तो जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहां पे नहीं है, कुछ कंज्यूमर्स तो वहां पे भी जहाँ पे वो चीजें प्रोड्यूस नहीं होती है। दैट्स व्हाई डिस्पर्शन इज एसेंशियल। डिस्पर्शन जो है होलसेलिंग और रिटेलिंग के थ्रू होता है। होलसेलिंग करेंगे और रिटेलिंग करेंगे तभी ना कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब डिस्पर्शन का दूसरा काम क्या है? भाई सम ऑफ प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स वी कैन से आर डिस्पर्स्ड टू मैन्युफैक्चरर या कोई प्रोसेसर उसको भेज दिए, तो जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोड्यूस था उसको क्या करेंगे, उसको तो जो है फैक्ट्रीज में भेज देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कुछ या कुछ को प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं, और जो कुछ बचता है उसको हम जो है डिस्पर्स कर देते हैं फाइनल कंजप्शन के लिए टू द फाइनल कंज्यूमर्स थ्रू द चेन ऑफ होलसेलर, रिटेलर और अदर मिडल। कहने का मतलब डिस्पर्शन का प्रोसेस जो है वो मिडलमैन के थ्रू होता है, जिसमें हम कुछ तो हम फाइनल कंजप्शन के लिए कंज्यूमर्स को भेज देते हैं, बाकी को हम प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं या कुछ फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर के लिए भेज देते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन। अब बात करते हैं इक्विलाइजेशन। इक्विलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चला है कि ये किसी चीज को इक्वल करता है, बैलेंस करता है। तो यहाँ पे क्या करता है ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जो डिमांड सप्लाई है ना उसको बैलेंस करने का कोशिश करता है। We can say that this is the process of adjustment of demand and supply as per the needs on a time or place basis. किसी समय पे और किसी प्लेस पे कोई चीज का कमी या ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस कैसे करता है? इक्वलाइजेशन aims at regular supply of goods. ये वहां पे रेगुलर सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, जहां पे मान लो किसी प्लेस पे जो है किसी चीज का कमी है, वहां पे उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं, तो यहाँ पे सप्लाई रेगुलर सब करता है। किसी समय कोई समय मतलब जैसे प्रोडक्शन ईयर होता है या प्रोडक्शन पीरियड जब होता है तो बहुत सारा चीजें मिल जाती है, लेकिन जब कुछ समय ऐसा होता है जब ऑफ सीजन होता है, प्रोडक्शन सीजन और ऑफ सीजन में जो है आपको सप्लाई का दिक्कत होता है या वेरी करता है। जब ऑफ सीजन होता है तो वो आपको सप्लाई करके इक्वलाइजेशन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वलाइजेशन aims at the regular supply of goods which are produced in a particular season
बट कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर। कुछ चीजें होती है जो कि एक सीजन में ही प्रोड्यूस की जा सकती है, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जबकि उसको कंजप्शन की जरूरत पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। वैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही कंजप्शन की जरूरत पड़ती है, बाकी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कब पूरे साल, जैसे मैन्युफैक्चर गुड्स या क्लॉथिंग गुड्स या आपके कुछ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे चीजें जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही हम यूज करते हैं, जैसे रेन कोट्स, अम्ब्रेला, मफलर, ये हम केवल सर्दियों में यूज करते हैं या बरसात में यूज करते हैं, लेकिन ना तो हम साल भर सकते हैं। तो इसी को इक्वलाइजेशन के थ्रू जो है डिमांड एंड सप्लाई को हम बैलेंस करते हैं। तो इक्वलाइजेशन फैसिलिटेट द रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इक्वलाइजेशन काम क्या है कि रेगुलर सप्लाई करते हैं, चाहे कहीं किसी भी प्लेस पे हो या चाहे किसी भी टाइम हो। टाइम और प्लेस के आधार पे ये जो है इक्वलाइजेशन करता है। तो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। So the equalization process implies the reconciliation between demand and supply, the storage and transport। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन किसके थ्रू होता है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोरेज के थ्रू और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। कैसे? मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन ब्रिंग्स ट्रांसपोर्ट ब्रिंग्स इक्वलाइजेशन ऑफ सप्लाई प्लेस वाइज। प्लेस वाइज सप्लाई को फुलफिल करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन जो इक्वलाइज करता है सप्लाई को प्लेस वाइज, मतलब एक प्लेस में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, मतलब वहां बहुत ज्यादा सप्लाई है और डिमांड नहीं है, दूसरे बाकी दूसरे प्लेस पे जो है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड लेकिन सप्लाई नहीं है, वहां से वहां पहुंचाने का काम को करता है ट्रांसपोर्टेशन। वैसे वेयर हाउस या स्टोरेज क्या करता है? समय के हिसाब से इक्वलाइज करता है कि ऑफ सीजन में सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ऑफ सीजन में डिमांड ज्यादा होती है, तो वो स्टोर करके ऑफ सीजन में सप्लाई करता है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इक्वलाइजेशन। कीप इट इन माइंड गाइस। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मार्केटिंग प्रोसेस? मार्केटिंग प्रोसेस इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, डिस्पर्शन एंड इक्वलाइजेशन। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं कि असेंबलिंग क्या होता है? असेंबलिंग आप कुछ जो है एक्सप्लेन कर देना, कुछ कमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे इक्वलाइजेशन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए जस्ट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, कमेंट्स करिए। कुछ क्वेश्चन तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दोस्तों में इसको शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, कोरोना से बचे रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। हाँ, मिलते नए नए वीडियो के साथ नई क्लास में। टिल देन बाय बाय।